Hi Ashish, thank you for calling us. My pleasure. Let's have a good conversation. समझते हैं सेफ सीज के बारे में थोड़ा सा. So this is a co-working space जहाँ पे आप काम कर रहे हैं. Yes. So you find co-working a better place to work rather than having your own. Yes. Okay. आपने अभी रिसेंटली शिफ्ट किया है यहाँ पे सारा. Yes. Last week ही शिफ्ट हुए. ओके. और अभी आपकी टीम पूरी आप लेके गए थे एक ट्रिप पर. Yes. जिसके बारे में डिस्कस अब किया तो था. 1 महीने हो गए, but was a fun trip. ओके. ठीक है 4 crores for 9% equity. Very good. Good. Good, you fought for it. I'm one of those जिसे पैसे भी खर्चने हैं लेकिन डील भी चाहिए. आपने शार्क टैंक का ऑफर छोड़ दिया. Yes. व्हाट इज योर से? व्हाई? इंडिया में आज के दिन में 11.5 करोड़ एक्टिव क्रेडिट कार्ड्स है. 11.5 करोड़ क्रेडिट कार्ड्स इन इंडिया across between 6 to 7 crore unique users. 6.2. If you use them well, they can be the best financial product you can ever use, and if you don't use them well, they can also be the worst financial product a person can ever use. आपका जो बैकग्राउंड था, यू आर CFA, MBA, देन यू हैव वर्कड विद एस्टैब्लिश्ड कंपनीज. सो ये डिसीजन लेना कि अब जॉब छोड़नी है, एक स्टेबल लाइफ छोड़नी है और ये एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट करनी है, ये एक इमोशनल डिसीजन था कि वेल प्लान्ड, वेल थॉटफुल डिसीजन था आपका? I've also worked with many entrepreneurs myself. I've worked with Kunal Behel, Amit Jain. So these people have they played a big part in shaping me into what I am today. तो एक बोलते हैं ना, you become a sum of all the people you spend time with. 100%. So having spent time with so many entrepreneurs, ये भी पता था कि entrepreneur बनना है. You are talking about free rewards, free flights, free hotels. और लोगों का माइंडसेट है कि जब आप फ्री होटल्स और फ्री फ्लाइट्स की बात कर रहे हो तो व्हाई नॉट यू गिविंग द सर्विस फॉर फ्री? मैं हूँ आशीष गुरुग्राम से, फाउंडर ऑफ सेफ सीज. मेरी आस्क है 1 crore for 1% equity. तू हो इन्वेस्ट इन सेफ सीज. नया टोटका. शार्क टैंक पे आप गए और अनुपम का सबसे पहला वर्ड आता है नया टोटका. उन्होंने आपको ये कहा Yes. क्योंकि रिवॉर्ड्स को मोनेटाइज करना, रिवॉर्ड पॉइंट से बात करना थोड़ा सा गिमिकी साउंड करता है मोस्टली लोगों को कि रिवॉर्ड से इतना कुछ नहीं, नॉट पॉसिबल. आपने कैसे अपने प्रोडक्ट को रीपोजिशन किया कि नहीं ये कोई हैक नहीं है, इट्स अ सीरियस प्रोडक्ट एंड अ सीरियस बिजनेस? रिपोजिशन करने की जरूरत ही नहीं थी. उन्होंने जब डेमो देखा, he was sold. he was sold. You've seen the episode, pitch. yeah. So when he saw the demo, when he heard the numbers, when he he was sold. तो वो तो ठीक है, उन्हें भी TRP के लिए कुछ तो करना ही पड़ता. बोला कि मैंने अभी ये देख, मैंने तनिष्क पे पिछले महीने 55 lakhs का पेमेंट किया था इस कार्ड पे, एंड आई गॉट द पॉइंट्स एंड एवरीथिंग. तो बोला कि नहीं मिले आपको पॉइंट्स. जब आप 22 होते तो बोलते 25 के बाद करूँगा, जब 25 हो जाए तो बोलते 30 के बाद करो, 30 हो जाए 35 के बाद करो. मतलब कि अब 40 नहीं करना. देखिए, द ओनली थिंग आई हैव लर्नड इन लाइफ इज कि देयर इज नो आइडियल टाइम. If you there are people who began at 50, 55 and they are immensely successful. There are people who began at 20, they were not so successful. तो हर समय का there are pros and cons for everything, right? डोंट यू थिंक आजकल एक ट्रेंड सा हो गया है कि एक फाउंडर को सक्सेसफुल तभी माना जाता है जब उसको एक मोटा इन्वेस्टिंग पेचेक आता है? Actually, I was thinking this in the morning itself. So there is a company, of course not naming the company, a fintech company. This year our revenue would be more than those guys and we will be much more profitable than those guys. But they have what, $25 million in funding. We have less than 1 million in funding. And I was thinking कि if a person looks at both the companies, who would be more successful? So आज हमें people are offering us a lot of money. We don't need the money because the company is financially very sound. The fundamentals are sorted and we will continue to do so. So आपके एप्स में पे वॉल है. You know, the other day before the podcast, I thought कि थोड़ा स्टडी किया जाए. I downloaded the app, instantly it asks for money. Before I enter or know anything, I have to pay. और इससे बहुत ज़्यादा issues भी हुए थे, ratings भी आई थी आपके. So what is your say on that? There's nothing called free lunch to begin with, right? आज के एपिसोड में हम ऐसे फाउंडर के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने पैसे को सिर्फ कमाने की चीज़ नहीं बल्कि समझने की चीज़ के बारे में बात करी है.
फ्लाइट्स, होटल्स, क्रेडिट कार्ड हम सब यूज़ करते हैं, बट क्या हम अननोइंगली इसका यूज़ करके किसी और को बेनिफिट कर रहे हैं? उन्होंने ये बात समझाई है। तो आज हम बात करने वाले हैं आशीष लट के बारे में, जो फाउंडर हैं सेफ सेज के। वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रहे हैं जहाँ पे क्रेडिट कार्ड्स के रिवॉर्ड्स, उनका यूसेज को हम अच्छे से समझ सकें और उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाएं। तो लेट्स स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन विद आशीष टू नो मोर अबाउट हाउ टू यूज क्रेडिट कार्ड वाइजली। आशीष, आपके ना एक लाइन बहुत फेमस हुई, फ्री फ्लाइट्स, फ्री होटल स्टेज। आपका हमेशा एक बात कहना है कि ये एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम से आपने इसको अवेल किया था, और ये हर इंडियन के लिए एक्सेस में है। एवरी इंडियन कैन एक्सेस दिस। यस। और अगर यस है तो इसकी अडेप्टेबिलिटी, इसका अडॉप्शन इतना लो क्यों है? ये काफ़ी कुछ बाय डिज़ाइन है। लेट मी गिव यू एन एनालॉजी बिफोर वी रियली टॉक अबाउट क्रेडिट कार्ड्स। जिम की मेंबरशिप। नाउ अगर आपका जिम है तो आप तो यही चाहोगे कि आपके पैसे तब बनते हैं जब फॉर एग्जांपल 5000 पीपल साइन अप फॉर द मेंबरशिप, दे पे यू द मनी। बट अगर 5000 के 5000 लोग अगर जिम ने आना शुरू कर दिया तो आपका जिम कभी नहीं चल पाएगा। तो आप ये चाहते हो कि आउट ऑफ 5000 पीपल पॉसिबली 2000 people will never come to the gym after paying you. The remaining 3000 people, maybe another 1000 people, they'll come for a week, they'll come for 2 weeks, and then they will stop coming. And then there'll be a few hundred odd people who will come once a week, or probably once in 2 weeks, or maybe 2 times a week. And then there'll be some people who will come maybe 4 days a week. And then there'll be people who come every day, and then there'll be people who come in the morning and who come in the evening. So, same thing goes with credit cards. अगर जिम वाला, अगर सबके सब लोग एक साथ में जिम आ गए तो उसका जिम कभी नहीं चल पाएगा। एट द सेम टाइम अगर सिर्फ वही लोग जो कि सुबह शाम आते हैं सिर्फ वही पैसे देंगे तो भी जिम कभी नहीं चल पाएगा। सो देयर इज़ एन इक्विलिब्रियम ओवर देयर कि पीपल हु सिंपली पे फॉर मेंबरशिप बट डोंट टर्न अप एट द जिम, they are actually paying for people who come in the morning, who come in the evening, or people who come on a daily basis, right? Same thing goes for credit cards. Banks give you reward points. अगर सब लोग रिडीम करना शुरू कर देंगे सो देन इट मे नॉट रियली वर्क आउट फॉर द बैंक। अगर सब लोग जो रिडीम करते हैं वो सही ऑप्शन के लिए रिडीम करना शुरू कर देंगे देन अगेन इट मे नॉट वर्क आउट फॉर द बैंक। तो बैंक अपने रिवॉर्ड सिस्टम्स को इस तरीके से डिज़ाइन करता है कि काफ़ी अच्छे ऑप्शंस भी दिखते हैं, काफ़ी शोर शराबे भी होता है, बट फ्रिक्शन भी होता है कि हर कोई यूज़र उन रिवॉर्ड पॉइंट्स को ना अर्न कर सके ना रिडीम कर सके। तो एक ये सिस्टम बना ही इसके लिए कि शोर शराबा भी हो बट सब लोग रिडीम ना कर सके, क्योंकि अगर सबने ऑप्टिमाइज करना शुरू कर दिया तो बैंक विल गो आउट ऑफ बिजनेस। सो जैसे अपने डेटा आपने शेयर किया था कहीं पर कि दे आर लाइक 6.2 करोड़ ऑफ क्रेडिट कार्ड यूजर्स। तो अगर मैं आपके डेटा से मैच करूं कि आपके कितने यूजर्स हैं अभी, और वी विश कि आपके यूजर्स बढ़ते जाएं डे बाय डे एंड इट्स रीचेस समवेयर लाइक 6 करोड़ यूजर्स फॉर यू समडे, तो क्या ये बैंक्स रिवॉर्ड पॉइंट्स देना बंद कर देंगे फिर, क्योंकि मैक्सिमम यूसेज आ गई फिर रिवॉर्ड पॉइंट्स की, क्योंकि आप तक अवेयरनेस फैला रहे हैं ना? यस, देखिए दुनिया में पहला जो कैशबैक क्रेडिट कार्ड आया था वो आया था 1986 में यूएस में। जो पहला लॉयल्टी प्रोग्राम आया था एयरलाइन का वो आया था 1981 में अमेरिकन एयरलाइंस का। जो पहला रिटेल का लॉयल्टी प्रोग्राम आया था वो आया था 1783-84 में यूएस में, जब एक छोटी दुकान वाले ने अपने यूज़र्स को डिपेंडिंग अपॉन वो कितना खर्चा करते हैं, कितने फ्रीक्वेंटली वहाँ से शॉपिंग करते हैं, उनको वो कुछ स्टैम्प्स देता था विच वॉज अ फॉर्म ऑफ लॉयल्टी बिकॉज पीपल कुड रिडीम द स्टैम्प्स फॉर सम अदर बेनिफिट इन फ्यूचर। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज़ दैट लॉयल्टी और यूज़र इंसेंटिवाइजेशन, जहाँ पर आप यूज़र को इंसेंटिवाइज करते हो, इट्स अ पार्ट ऑफ कंज्यूमर इकोनॉमी। As long as companies need to sell their goods or services to users, they need to incentivize a user कि आप आके मेरे पास खरीदो। क्यों खरीदो? बिकॉज मैं आपको पॉइंट्स दे रहा हूँ, मैं आपको कुछ ना कुछ दे रहा हूँ। सो दिस विल नेवर गो अवे बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ कॉम्पिटिशन। अगर 10 बैंक के 10 बैंक को अपने कार्ड्स बेचने तो दे हैव टू कम्पीट विद ईच अदर एंड दे विल कीप गिविंग यू सम रिवॉर्ड्स और सम बेनिफिट्स और दी अदर, राइट? तो ये कभी जा तो नहीं रहा। What would keep happening is that there would of course be a change in terms and conditions. There would be जो हम कहते हैं devaluation, revaluation. Correct. कुछ benefits बंद कर दी जाएगी, कुछ benefits के लिए conditions आ जाएगी, कुछ benefits नए आ जाएंगे, तो ये evolve होते जाएगा, but this is not going away anytime soon.
ऑब्वियसली कंपटीशन है क्योंकि क्रेडिट कार्ड्स में भी, बैंक्स में भी। तो आपको this will इवेंचुअली be- अपने प्रोडक्ट्स तो बेचने ही हैं, तो बिल्कुल। आप ये मार्केटिंग तो करोगे, नहीं तो मार्केटिंग का पार्ट है, जो रिवॉर्ड्स आप देते हो तो मार्केटिंग It's का a part पार्ट of है। marketing. And again, whether these rewards are paid by the credit card companies, banks, or by the companies जिनके रिडम्पशन के लिए पॉइंट्स यूज हो रहे हैं। एवरीवन। सो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल के थ्रू पूरी चेन समझाता हूँ। देखिए, अगर 100 लोग हैं जो कि अमेजोन पे शॉपिंग कर रहे हैं, 50 लोगों ने कैश में पे किया या यूपीआई यूज़ किया, बाकी 50 लोगों ने क्रेडिट कार्ड पे किया। अब अज्यूम करते हैं कि सब लोगों ने 100 रुपये का ऑर्डर प्लेस किया, तो जो 50 लोगों ने यूपीआई या कैश में पे किया, उन्होंने 100 रुपये पे किए, उनके 100 रुपये लगे, उन्हें कोई बेनिफिट नहीं मिला। अमेजोन को 50 लोगों से 5,000 रुपये मिल गए। करेक्ट। जिन्होंने क्रेडिट कार्ड से पे किया तो सेम 5,050 पीपल इंटू 100। नाउ क्रेडिट कार्ड के लिए फॉर एग्जांपल अमेजोन को 2% चार्ज देना पड़ा। सम पार्ट ऑफ इट गोज टू द बैंक विच गिव यू द क्रेडिट कार्ड, सम पार्ट ऑफ इट गोज टू वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपे। Right. तो उनका अब आप अमेजोन की तरफ से देखो कि उसने ये देखा है कि मेरे 100 यूज़र आए, सबने 100 रुपये की शॉपिंग की, नेट मुझे 9,900 रुपये मिले, बिकॉज 1% मेरा खर्चा हो गया। राइट। अब Amazon doesn't charge a differential rate for credit card and non credit card holders. So Amazon तो ये बोलेगा कि मेरा 1% is a cost of money coming in, cost of payments. करेक्ट। तो जब उसे प्राइजेस बढ़ाने, उसने 1% से प्राइजेस बढ़ा दिए सबके लिए। सबके लिए। तो सबसे पहले people who are paying in cash, people who are paying UPI, they are in a way subsidizing for people who are paying using credit cards. करेक्ट। अब दूसरे पे आते हैं कि जो 50 लोगों ने क्रेडिट कार्ड यूज़ किया, अब लेट्स अज्यूम 50 लोग, सबको बैंक ने रिवॉर्ड पॉइंट्स दिए। ऑफ कोर्स किसी के पास में लेस रिवॉर्डिंग क्रेडिट कार्ड है, किसी के पास में हायर रिवॉर्डिंग क्रेडिट कार्ड है। तो किसी को 100 रुपये के खर्चे पे 25 पैसे के रिवॉर्ड पॉइंट्स मिले, एंड अनदर पर्सन हु पेड 100 रुपीज़, ही गॉट रिवॉर्ड पॉइंट्स विद 5 रुपीज़। तो अ पर्सन हु गॉट रिवॉर्ड पॉइंट्स वर्थ ओनली 25 पैसे इज एक्चुअली पेइंग फॉर समवन हु गॉट रिवॉर्ड पॉइंट्स विद 5 रुपीज़। करेक्ट। Third, all 50 people got reward points. Now let's assume 25 people never redeemed their points. So whatever points they had expired. The 25 people who redeemed their points. So in a way, while the bank gave all the 50 people reward points, people who did not redeem are paying for people who actually redeemed their points. So वो तीसरा level हो गया. Now, even within people who redeem their points, there are lots of people who end up redeeming their reward points for very suboptimal options where the value per point which they are getting is very low. काफ़ी क्रेडिट कार्ड्स में बैंक में गिव यू एज मेनी एज 50 डिफरेंट रिडेम्पशन ऑप्शंस। ओके। नाउ 50 में से आपके लिए कौन सा सही ऑप्शन है, यू अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल हैव नो आइडिया, यू एंड अप रिडीमिंग योर पॉइंट्स फॉर द मोस्ट विजिबल रिडेम्पशन ऑप्शन कि मैं वो कैशबैक दे दो, ये दे दो, वो दे दो। हाँ, जैसे मैंने भी आपसे शेयर किया कि हमने सिर्फ मूवी टिकट्स के लिए रिडीम कर लिया एंड वी वर हैप्पी। यस, तो इसमें क्या होता है कि depending upon the option that you're redeeming for, 2 people redeeming their points, 1 person redeems for per point value of say 30 paise, another person redeems their point for per point value of 2 rupees. ये possible है काफ़ी कार्ड्स में। ओके। So in a way जो बंदा 30 पैसे के लिए रिडीम कर रहा है, he is in a way paying for the person who is smart enough to redeem their points for 2 rupees. तो ये आप समझ गए। So when you look at all the different levels of optimization where someone is paying for someone else, if you are in those people who use their cards well, who use the right cards, who use their cards well to get maximum number of points, who always redeem their points and who also redeem their points for the best value, तो आप 10-15% वैल्यू तो आपको ऐसी मिल गई, and all the people who are not doing so are actually paying for your points. करेक्ट। तो ये एक पहली बात हो गई। अब आते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा वैल्यू देता है, बिकॉज यू हैड अ क्वेश्चन ऑन हु इज पेइंग फॉर दिस, राइट? तो एक तो हो गया बैंक इज पेइंग फॉर दिस, अदर पीपल आर पेइंग फॉर Correct, दिस। हाँ. नाउ लेट्स लुक एट द रिडेम्पशन पार्टनर साइड ऑफ हाँ. इट। अब आपको ऑफ ऑल द डिफरेंट रिडेम्पशन ऑप्शंस दैट यू मे हैव, यू गेट द मैक्सिमम वैल्यू व्हेन यू रिडीम योर क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट्स फॉर ट्रैवल। ना ऐसा क्यों है? देखिए, ट्रैवल जो होती है एक पेरिशेबल कमोडिटी है। मतलब अगर मेरी फ्लाइट है, इफ़ आई रन एन एयरलाइन, इफ़ माई प्लेन टेक्स ऑफ, इट टेक्स ऑफ, उसमें से 100 सीट में से अगर मैंने खाली 90 सीट्स फिल की, 10 खाली थी तो 10 खाली थे, मैं कल नहीं बेच सकता। ट्रू। सेम थिंग गोज फॉर होटल। राइट। If I have a hotel with 100 rooms, I have to sell all 100 rooms today. I cannot sell it tomorrow. Unlike, for example, a t-shirt factory or biscuit factory or anything else where you can manufacture today, you can also sell it tomorrow or the day after if you are not able to sell it today. Today itself, right. अब ट्रैवल में एक ये बहुत ही
बड़ा इशू होता है। अब अगर आप एयरलाइन चलाते हो तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, तो आप बोलोगे कि मेरे पास तो सीट्स हमेशा खाली होती है, विच आई नीड टू फिल बिकॉज आई एम नॉट एबल टू फिल ऑल माई सीट्स, 90% ऑफ माई एक्सपेंसेस आर फिक्स्ड, सो एज लॉन्ग एज आई एम एबल टू रिकवर माई वेरिएबल एक्सपेंसेस प्लस थोड़ा सा और, आई एम मोर देन हैप्पी टू डू डिस्काउंटिंग ऑन माई टिकट्स। करेक्ट। लेकिन आप ओपन डिस्काउंटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने ओपन डिस्काउंटिंग करके बेचा तो क्या होगा कि पीपल हु पे यू फुल मनी दे विल से कि भाई यहाँ पे तो लास्ट मिनट में खरीदो, डिस्काउंट मिल जाएगा। आप ओपन डिस्काउंटिंग नहीं कर सकते। अब आप क्या करोगे? आप बैंक के पास गए, आपने बैंक को बोला कि देखिए मैं अपने, आप ये मुझसे पॉइंट्स खरीद लो एंड यूजर्स कैन गेट रिडीम दिस पॉइंट्स फॉर टिकट्स सब्जेक्ट टू सर्टेन TNC। तो आपने उनको पॉइंट्स बहुत ही सस्ते भाव में दे दिए, आपको पॉइंट्स आ गए, आपको पैसे आ गए उसके सामने सामने। तो आज आपके लिए मनी इज इन पॉकेट टुडे इटसेल्फ। रिडेम्पशन में हैपन 6 months लेटर, 1 year लेटर, तो आपको तो पैसे मिल गए। एंड ऐसा भी होगा कि शायद सारे पॉइंट्स रिडीम ही नहीं होंगे, रिडीम ही नहीं होंगे। किसके लिए? वहाँ पे बैंक किसी को देगा तो उनके सारे पॉइंट्स उनको मिलेंगे नहीं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी एयर इंडिया ने पार्टनरशिप की जोमेटो के साथ, इंडिगो ने पार्टनरशिप की स्विगी के साथ में, आपने पार्टनरशिप करी फ्लिपकार्ट के साथ फॉर सुपर कॉइंस। यस। सो क्या होता है कि एवरी टाइम यू ऑर्डर ऑन जोमेटो यू गेट एयर इंडिया माइल्स, राइट? नाउ व्हाट वुड बी हैपनिंग इज जोमेटो वुड हैव डन अ पार्टनरशिप विद एयर इंडिया वेयर जोमेटो हैज बॉट द पॉइंट्स इन बल्क, एयर इंडिया पॉइंट्स इन बल्क। अब जब भी आप खरीदी करते हो, whenever you order food or do anything on Zomato, you get those points which they are distributing to you in a way to incentivize you. Now what would happen is, while they would have bought, say for example 10 million Air India miles in bulk in the background, say at a per point value of 15 पैसे, तो अगर 1 million माइल्स खरीदे तो जोमेटो ने एयर इंडिया को 1.5 लाख रुपये दे दिए। आप एयर इंडिया तो आप तो खुश हो कि मुझे 1.5 लाख रुपये आज के आज मिल गए। पॉइंट्स रिडेम्पशन में हैपन इन फ्यूचर। अब जोमेटो ने ये जो 1 million पॉइंट्स से सपोज उन्होंने 10 लाख लोगों को बांट दिए, क्योंकि जब मैं ऑर्डर करता तो मुझे किसी ऑर्डर पे 2 माइल्स मिलते, किसी पे 5 मिलते, किसी पे 10 मिलते। नाउ व्हाट वुड हैपन है, अ लॉट ऑफ पीपल वुड नॉट हैव सफिशिएंट नंबर ऑफ एयर इंडिया माइल्स टू एवर रिडीम देम। करेक्ट, इट हैपेंस। तो क्या होगा कि शायद एक्सपायर, हाँ 1 million माइल्स है तो शायद उसमें से 8 लाख माइल्स और 9 लाख माइल्स तो कभी रिडीम ही नहीं होगी, क्योंकि वो इतने ज़्यादा फ्रेगमेंटेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसी के 100 है, 200 है, दे डोंट हैव सफिशिएंट माइल्स, वो एक्सपायर हो जाएंगे, तो उनको तो पैसे मिल गए। पीपल हु रिडीम, अब क्या होगा कि सबसे पहले एयर इंडिया के इट बिकम्स हाईली प्रॉफिटेबल बिकॉज ही गॉट 1.5 लाख रुपीज़ ऑन डे 0। करेक्ट। नाउ एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन क्या होगा कि उनकी सीट शायद वो कभी भरती ही नहीं। So if I was Air India, I'm saying कि my Delhi to Bombay ticket is for example selling for 5,000 rupees normally, but via redemption I'm getting 2,000 rupees इस तरीके से। बट शायद वो सीट कभी भरती ही नहीं तो उसमें मुझे लॉस होता, बट मेरा पर सीट का खर्चा 1,000 रुपये, तो शायद मेरा वेरिएबल एक्सपेंस निकल गया प्लस मेरा थोड़ा फिक्स्ड एक्सपेंस भी निकल गया। सो इट्स अ वेरी प्रॉफिटेबल business for me. Secondly, a lot of people who otherwise may not have traveled by Air India got to try the Air India product out, so it's a sampling for them. Sampling for them. तो फ्यूचर में शायद आप पूरे पैसे दे के भी एयर इंडिया की फ्लाइट से जाओगे कि एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। सो उनके लिए ये बेनिफिट्स हो गए। सो इट्स नेट P&L पॉजिटिव फॉर द एयरलाइन। राइट। जोमेटो ने कहा कि यार मेरे यूज़र को मैंने 1.5 लाख रुपये खर्चे किए, बट आई वॉज एबल टू गिव आउट 1 million points to these people. From a user's perspective, you're getting something where you may not have got anything, and people who were able to redeem their points in the right manner. So for example, दिल्ली से बॉम्बे 5,000 की टिकट है, बट मेरे पास 5,000 पॉइंट्स में मुझे मिल जाती है, और ये 5,000 पॉइंट्स मुझे सिर्फ 1 लाख के खर्चे पे मिल गए, तो यूज़र भी खुश है। So that's how all the 3 stakeholders are very happy in the ecosystem. Airline is happy, the card company or Zomato in this case is happy, and the user is also itself obviously because अगर मैं उसको कैशबैक के लिए रिडीम करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो शायद मुझे पर पॉइंट 10 पैसे, कैसे मैं एक कार्ड की एग्जांपल लेता हूँ कि इफ़ आई एम एन HDFC बैंक, राइट, अगर मैं आपको 100 रुपये पे 1 पॉइंट देता हूँ एज अ यूज़र को, आपने 1 लाख का खर्चा किया तो मैंने आपको 1,000 पॉइंट्स दे दिए। नाउ आई गिव यू 10 डिफरेंट ऑप्शंस फॉर रिडेम्पशन। एक ऑप्शन है कैश बैक, तो मैंने कैश बैक के लिए कहा कि पर पॉइंट यू गेटिंग 30 पैसे पर पॉइंट, यानी आपको 1,000 पॉइंट पे आपको 300 रुपये मिल गए एज ए यूज़र। तो आपने बोला 1 लाख पे 300 रुपये का मुझे कैश बैक मिल गया, आई एम हैप्पी। बैंक के लिए एंटायर 300 रुपीज़ इज़ कॉस्ट, क्योंकि उन्होंने कैश बैक दे दिया तो आपके जो अमाउंट था उससे कम हो जाएगा।
अब यही अगर एयर इंडिया से वो पार्टनरशिप करते, वो बोलते कि मैं पर पॉइंट की जगह तो मुझे 2 एयर इंडिया के पॉइंट दे दो, आई मीन उन्होंने कहा कि मुझे एयर इंडिया का 1 पॉइंट 10 पैसे में दे दो, एंड यूज़र को उन्होंने कहा कि फॉर एवरी क्रेडिट कार्ड पॉइंट यू हैव आई विल गिव यू 2 एयर इंडिया पॉइंट। करेक्ट। तो जो 1000 उनके क्रेडिट कार्ड के पॉइंट थे 1 लाख के खर्चे पे जो आपको मिले थे, उस पर आपको 2000 एयर इंडिया के पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है। बैंक का खर्चा हुआ 200 रुपये 300 की जगह, बिकॉज दे बॉट पर पॉइंट फॉर 10 पैसे। 10 पैसे। आपको एज ए यूज़र आपको 1 लाख पे 2000 पॉइंट्स मिल गए। दिल्ली से बॉम्बे एयर इंडिया पे जाने के लिए आपको 5000 पॉइंट चाहिए। तो आपने बोला 2.5 लाख के अंदर मुझे 5000 पॉइंट्स मिल गए खर्चे पे, एंड आई एम एबल टू रिडीम फॉर 1 दिल्ली बॉम्बे टिकट। अब आपके इन योर माइंड दिल्ली बॉम्बे टिकट इज़ वर्थ 5000 रुपीज़, तो आपने ये बोला मुझे 2.5 लाख के खर्चे पे मुझे 5000 की टिकट मिल गई। एयर इंडिया का खर्च सॉरी HDFC बैंक का वो कैशबैक देता हो तो उनका खर्चा आता 750 रुपये, इन दिस केस उनका खर्चा आया 500 रुपये, तो दे आर हैप्पी। दे आर हैप्पी। एट द सेम टाइम यूज़र को भी ज़्यादा वैल्यू मिल गई। यूज़र को कैशबैक मिलता तो शायद कितने 750 रुपये मिलते, in this case the user got value worth 5000 rupees. हाँ. User happy, bank happy, and Air India is also happy. करेक्ट करेक्ट। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन आई होप यू वर एबल टू गेट द ड्रिफ्ट कि कैसे काम करता हाँ, है। नहीं वो समझ में आ गया लोगों को है, लेकिन बट कमिंग फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ आप समझाएंगे तो ज़्यादा समझ में आता है लोगों को। आप एक बात हमेशा हाईलाइट करते हैं कि प्रॉब्लम पैसा कम होना नहीं है, सिस्टम समझने की है, हाउ दिस फाइनेंशियल सिस्टम वर्क। तो आपके एक्सपीरियंस में इंडिया में फिनेंशियल स्ट्रेस ज़्यादा नॉलेज ना होने का रिजल्ट है कि एक बिहेवियल पैटर्न है हमारा, जैसे कि डिसिप्लिन नहीं है हमें खर्च करने का, या डिले है, या फियर है फाइनेंसेस को डील करने में? I think it's a mix of everything that you mentioned. Of course, there is a lot of lack of awareness among the users, among people, ki how credit cards work or how any financial product works for that matter. कैसे अगर आज भी you talk to very knowledgeable people, otherwise who are very smart, who are qualified, but उनको क्रेडिट कार्ड्स कैसे काम करते हैं, they probably have no idea कि कार्ड्स कैसे काम करते हैं, रिवॉर्ड पॉइंट्स कैसे काम करते हैं. A lot of complexity in the system is also by design, like I said earlier, because banks भी नहीं चाहते कि हर बंदा properly use करे, redeem करे, otherwise the P&L will go for a toss. So of course, to begin with, there's a lack of awareness. There is no proper material which people can go through in a easy way, which can tell them कि कैसे होता है, क्या होता है. Unfortunately, a lot of social media influencers, they don't do a good job either, because they are more concerned about views rather than really helping a user. Second, discipline. I think even places where people have the knowledge, people are not disciplined enough. For example, a lot of times people end up spending money using a card on things which they don't really need. See, credit cards, if you use them well, they can be the best financial product you can ever use. And if you don't use them well, they can also be the worst financial product a person can ever use. अगर आप अच्छी तरह यूज़ करोगे, जैसे मैं यूज़ करता हूँ, तो यू कैन गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स, अ लॉट ऑफ पर्क्स. इफ़ यू डोंट यूज़ देम वेल, राइट, इफ़ यू आर समवन हु एंड्स अप स्पेंडिंग मनी विच यू डोंट हैव, देन दे आर नॉट गुड फॉर यू. इफ़ यू आर समवन हु एंड्स अप मिसिंग पेमेंट्स, राइट, मे बी आप ध्यान नहीं रख पाते कि आपका पेमेंट कब ड्यू है, एंड यू एंड अप मिसिंग योर पेमेंट. सो अगेन, क्रेडिट कार्ड्स आर नॉट फॉर यू. So if you are someone who is not able to handle their cards well, then cards are not for you. तो सेकेंड डिसिप्लिन वाली बात है. आई थिंक सो दीज आर टू की रीजन्स. अनफॉर्चुनेटली वी ऑल्सो ग्रोन अप हियरिंग अ लॉट ऑफ स्टोरीज फ्रॉम आवर पेरेंट्स की क्रेडिट कार्ड्स आर नॉट गुड फॉर यू, डेट होता है, ये होता है. लेकिन वो धीरे धीरे बदल रहा है. तो विद मोर एंड मोर अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट एंड हाउ इट वर्क्स, आई थिंक वो काफ़ी बदल रहा है. सो आई डोंट थिंक पीपल नाउ, एटलीस्ट व्हेन आई गो एंड टॉक टू पीपल, आई डोंट थिंक लोगों को भी ये लगता है कि डेट ट्रैप है. But of course, abhi bhi there is a lack of awareness ki cards, how do they work? And again, it's not available to everyone also. देखिए, अभी तो काफ़ी ऑप्शंस ओपन अप हो गए. सो दे आर FD बैक कार्ड्स, राइट? राइट, हाँ. तो आप सम ऑफ द FD बैक कार्ड्स बिगिन फॉर एज लिटिल एज 2000 रुपीज़ FD. तो आपने FD कर दी, उसके सामने आपको सिक्योर्ड कार्ड मिल गया, जिसके ऊपर खर्चे करने पे आपको 1% कैशबैक जनरली मिल जाता है. इन सम केसेस अ लॉट मोर देन 1%. सो इवन इफ यू डोंट
if you don't have a good credit score, if you don't qualify for a card otherwise, you can of course you can put in FD, you can take a secured card. तो उसमें आपको FD पे इंटरेस्ट तो मिलेगा ही, प्लस आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा टू बिगिन विद, जिसको आप अच्छी तरह यूज़ करके एंड देन यू कैन कीप एक्यूमुलेटिंग पॉइंट्स ओवर देयर. आपका जो बैकग्राउंड था, यू आर CFA, MBA, देन यू हैव वर्कड विद एस्टैब्लिश्ड कंपनीज. सो ये डिसीज़न लेना कि अब जॉब छोड़नी है, एक स्टेबल लाइफ छोड़नी है और ये एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट करनी है, ये एक इमोशनल डिसीजन था कि वेल प्लान्ड, वेल थॉटफुल डिसीजन था आपका? Again, I think a mix of both. So I had been working for 15 years after my MBA and before I began my entrepreneurial journey. सबसे पहली बात, एक तो मैं बन गया हूँ, तो पता था हमेशा से कुछ ना कुछ करना है खुद का. I've also worked with many entrepreneurs myself. I've worked with Kunal Behel, Amit Jain. So these people have they played a big part in shaping me into what I am today. तो एक बोलते हैं ना, you become a sum of all the people you spend time with. 100%. So having spent time with so many entrepreneurs, ये भी पता था कि entrepreneur बनना है. अब क्वेश्चन था कब बनना है और क्या करना है. अब क्या करना है, तो ये भी थोड़ा धीरे धीरे समय के साथ में क्लियर हो गया, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन दैट पर्सन कि भाई कोई डील है तो बता दे. एंड वन डे आई डिसाइडेड व्हाई नॉट डू दिस फॉर द एंटायर वर्ल्ड, बिकॉज ये तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है विच वी कैन सॉल्व. द क्रेडिट कार्ड मार्केट इन इंडिया वॉज बूमिंग, रिवॉर्ड्स वॉज बूमिंग. सो मतलब ये तो करना ही है, ये तो काफ़ी इट्स मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस. तीसरा था कब करना है, वो थोड़ा प्लान्ड भी था. Because I've been thinking, I had this idea for many years, for a very long time, but I sat on it for good, I think 3.5 years before I took the plunge. तो 3 साल हुई थी कि you know when you have a proper salary coming in on a month on month basis, तो it's very difficult for you to take the plunge. एक डर होता है कि भाई क्या होगा. There was COVID as well, you have responsibilities, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यार पहले घर खरीद लो, यार पहले थोड़ी सेफ्टी नेट बना लो, ये कर लो वो कर लो. बट देन आई थिंक इवेंचुअली देयर इज़ अ पॉइंट विच कम्स कि इट्स नाउ और नेवर. एंड फिर आप रिग्रेट मिनिमलाइजेशन में आ जाते हो कि भाई रिग्रेट नहीं होना चाहिए फ्यूचर में कि नहीं किया. तो आई गॉट इनटू दैट मोड एंड वाला कि भाई अब तो करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगर नहीं चले तो वापस नौकरी ढूंढ लेंगे, थोड़े कम पैसों में चले जाएगा तो क्या होना. सो बोला भाई लेकिन इफ़ नॉट नाउ देन व्हेन. क्योंकि पता है जब आप 22 होते तो बोलते 25 के बाद करूँगा, जब 25 हो जाए तो बोलते 30 के बाद करो, 30 हो जाए 35 के बाद करो, मतलब कि अब 40 नहीं करना. सो दैट वाज द केस विद मी. क्योंकि 40 के बाद टफ भी है. सी टफ तो वही बात है कि क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं. देखिए द ओनली थिंग आई हैव लर्न इन लाइफ इज़ कि देयर इज़ नो आइडियल टाइम. if you there are people who began at 50 55 and they are immensely successful. There are people who began at 20, they were not so successful. तो हर समय का there are pros and cons for everything, right? आप बोल सकते हो कि जब आप अर्ली हो तो आपके पास कोई भी सेविंग्स नहीं है, बट आप थोड़े इफ़ यू बीन वर्किंग फॉर सम टाइम यू हैव अ सेफ्टी नेट. एक्सपीरियंस है. एट द सेम टाइम आप गलतियाँ नहीं कर सकते बिकॉज यू नो because you've been doing this, so that much of I would say trauma is significantly more कि भाई क्यों है. At the same time जब आप when you are in your early 20s तो you can feel and not really think about it, तो वो वाली बात होती है. So how was your family's reaction? My family has been very supportive. Of course they don't agree with everything that I am doing or that I do, but overall they've been very supportive. I don't think I would have done even half of what we are doing today had it not been for their support, mainly my wife. बेटा तो बहुत छोटा है अभी. तो बट कभी कभी आपको ये फील भी आती है, वो भी सोचे पापा क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो. लेकिन उसके थोड़ा सा अभी क्योंकि ही इज़ यंग, छोटा है बहुत, आपने मुझे बताया. आज के टाइम पे बीइंग अ फाउंडर तो एक अच्छा सा वर्ड हो गया है ना. अर्लियर जॉब छोड़ के बिजनेस करना, दैट मीन्स यू आर नॉट डूइंग गुड इन योर जॉब, दैट्स वाई आपके पास ऑप्शन नहीं है. आप क्योंकि आई बिलोंग टू अ काइस्ट फैमिली, हमारे यहाँ सिर्फ जॉब करते हैं. आई बिलोंग फ्रॉम यूपी, हमारे यहाँ सिर्फ नौकरी करनी है. पढ़ लो बेटा, IAS बन जाओ, डॉक्टर, इंजीनियर. सो हमारे यहाँ जो बिजनेस में जाता है दैट मीन्स वो नालायक था पढ़ाई में. ही कुडंट अचीव गुड इन स्टडीज और गुड जॉब,
तो दैट्स वाई वो लैंड कर गया बिजनेस में. बट नाउ इट्स अ गुड वर्ड. थिंग्स हैव चेंज्ड. See, so there is a difference. I would say I wouldn't say it's a good word. I would say it's not a bad word. Now it's not a bad word, obvious. हाँ तो लोग because people have seen a lot of people do very well after It's exciting, but you know, you're a embarking founder. on the entrepreneurial journey. But at the same time लोग ये भी समझते हैं कि 100 में से शायद 2 या 3 ही कंपनीज होगी जो कि पैसा बनाती है. Correct, हाँ. 97% people would eventually end up failing. तो अभी भी so the way I look at things, एक है working for a startup. That is not a bad thing at all. That is actually a good thing because आपको market salaries मिलती है and at the same time आपको ESOPs भी मिलते हैं, so you can make a lot of wealth if everything goes well in the future. So working for a startup is okay. Doing one on your own, I think उसमें it really depends on where you are. So for example, अगर आपको फंडिंग मिल गई है तो everything is sorted, then you are very good, you're the apple of the eye. अगर आपको फंडिंग नहीं मिली है तो जब तक आपको फंडिंग नहीं मिली है तब तक थोड़ा स्ट्रगल होगा. पहले इनिशियली मे बी देल बी सम हनीमून पीरियड की चलो 3 महीने 6 महीने इट्स ओके. बट उसके बाद इफ़ यू नॉट पिक्ड अप अ बिग चेक देन ऑफ कोर्स देयर इज़ अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी कि क्या होगा क्या नहीं होगा. सो इट्स ऑल अबाउट एट व्हाट स्टेज यू आर, हाउ मच मनी यू हैव इन योर बैंक अकाउंट, बिकॉज इवेंचुअली एवरीथिंग इज डिटरमाइंड बाय हाउ मच मनी यू हैव इन योर बैंक अकाउंट. डोंट यू थिंक आजकल एक ट्रेंड सा हो गया है कि एक फाउंडर को सक्सेसफुल तभी माना जाता है जब उसको एक मोटा इन्वेस्टिंग पे चेक आता है? Actually, I was thinking this in the morning itself. So there's a company, of course, not naming the company, a fintech company. This year, our revenue would be more than those guys, and we would be much more profitable than those guys. But they have what, $25 million in funding. We have less than $1 million in funding. So, and I was thinking कि if a person looks at both the companies, who would be more successful? ऑफ कोर्स अगर मैं 10 लोगों से पूछूँ बोली कि देखो वो ज़्यादा सक्सेसफुल है, दे हैव 25 मिलियन इन फंडिंग, तुम लोग क्या कर रहे हो? तो वो आई थिंक दैट हैज़ टू चेंज, दैट ऑफ कोर्स हैज़ टू चेंज, बट आई थिंक बोथ द थिंग्स गो हैंड इन हैंड. सो आई थिंक क्योंकि आज के सिनेरियो में रेवेन्यू की बात होती है और फंडिंग की बात होती है, प्रॉफिट की बात नहीं होती. आपका यूज़र बेस कितना है, राइट? एक्टिव यूजर सी इवेंचुअली प्रॉफिट की बात भी होगी. इनफैक्ट अभी का तो जो आई थिंक करेंटली द सिनेरियो इज मच बेटर देन व्हाट इट वाज इन 2021 फॉर एग्जांपल, जब अचानक से कोविड के बाद इफ़ यू रिमेंबर एक साल में इंडिया में 85-90 कुछ यूनिकॉर्न्स बनी थी. देयर वाज नो रैशनल, पीपल वर गेटिंग फंडेड राइट लेफ्ट एंड सेंटर, पीपल वर बिकमिंग यूनिकॉर्न विदाउट एनी प्रॉफिटेबिलिटी, इन सम केस इवन विदाउट एनी रेवेन्यू. खाली थीसिस पे उनको पैसे मिले जा रहे थे. अगर आज आप जाके देखोगे सो मे बी आउट ऑफ द 85-90 यूनिकॉर्न्स पॉसिबली a good number of companies are even out of business. Majority of them have not been able to raise money after that, or even if they have raised money, that would be at a significantly reduced valuation, half the valuation or even more cut. There would be very handful of companies which have actually done better and further built on the valuation which they got during that point in time. So I think bubble था, तो bubble is never good, which is good. So कभी कभी for example we as a company we build things in a very fundamentally sound manner. I don't think अगर हम भी उस समय बनाते तो शायद इतने डिसिप्लिन के साथ बनाते थे. तो and we will continue doing so. So आज हमें people are offering us a lot of money. We don't need the money because the company is financially very sound. The fundamentals are sorted, and we will continue to do so. ग्रेट. सो सेफ सैलरी का आइडिया जब आपका आया, क्योंकि आपके कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे, एज यू सेड कि यू ऑलवेज फाइंडिंग द डील्स. सो ये एक पर्सनल इंसाइट थी कि एक स्केलेबल बिजनेस बन सकता है, और आपने कब ये डिसाइड किया कि एक सिंपल हैक नहीं है, ये एक्चुअल में एक बिजनेस हो सकता है? देखिए स्केलेबल बिजनेस तो मुझे अभी भी नहीं पता है, बिकॉज इफ़ यू गो एंड टॉक टू पीपल आई थिंक 99 out of 100 people would say it's not a scalable business even now. Okay. But we continue to build because we have conviction in what we are doing right now. बाकी देखिए इफ़ आई हैव टू टॉक अबाउट नंबर्स इन इंडिया, इंडिया में आज के दिन में 11.5 करोड़ एक्टिव क्रेडिट कार्ड्स है, 11.5 करोड़ क्रेडिट कार्ड्स इन इंडिया अक्रॉस बिटवीन 6 to 7 crore यूनिक यूजर्स, 6.2.
and hardly 0.1% people would be using the right card in the right manner and redeeming their points in the right manner. So that is a big opportunity to begin with in my mind. Secondly, why are people not doing this? Because शायद awareness ही नहीं है, कोई platform नहीं है, content बहुत है, कोई बताने वाला नहीं है, and that is a problem which we want to solve. If you go to US, if you go to other developed markets, over there points optimization is a big business. इंडिया में भी अभी जो भी लोगों ने क्रेडिट कार्ड के पॉइंट्स कभी भी रिडीम के दे विल टेल यू कि भाई ये तो मुझे करना है. एवरी टाइम आई टॉक टू पीपल ये तो बड़ी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है. आई थिंक व्हाट इज़ नॉट प्रूवन if someone can solve this in the right manner and someone can make money while solving this, that is what we are trying to do as well. सो ये कन्विक्शन आपको किस बात से मिली कि नहीं ये स्केलेबल बिजनेस है? See, वही था लाइक आई टोल्ड यू कि इतने यूजर्स है, ये डेटाबेस है, यू हैव रिसर्च ओवर द डेटा. एंड बाकी तो यू हैव टू टेक अ लीप ऑफ फेथ कि भाई आएंगे लोग, हाँ. तो वही हम बना दें. तो आई थिंक विद ईच पासिंग डे द कन्विक्शन ओनली गेट्स स्ट्रॉन्गर कि लोग आएंगे, लोगों को इसकी ज़रूरत है. नहीं वो हमको वैभव ने भी बता दिया ऑफ कैमरा कि आपका पॉडकास्ट देखे उसने भी यूज़ किया. हाँ, एंड ही मेड मनी आउट ऑफ इट. उन्होंने इनफैक्ट कुछ यूज़ ही नहीं किया. इनफैक्ट आई स्पीक विद हिम आफ्टर दिस कि ही हैज़ नॉट स्पोकन with an expert who can actually look at everything and guide him कि कौन सा सही कार्ड है, कैसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. That is where the real value will come in. ओके सो अगर एक फर्स्ट टाइम यूज़र सेफ सेज ओपन करता है तो सिर्फ फीचर्स नहीं उसकी डिसीजन मेकिंग जर्नी कैसे चेंज होती है? क्या आप इसमें कोई रियल लाइफ देखिए एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? हाँ, तो देखिए सबसे पहले वी वांट टू टेल यूजर्स कि उनके लिए सही कार्ड कौन सा है, बिकॉज दैट इज़ वेयर द एंटायर जर्नी बिगिनस. अगर आपके पास सही कार्ड ही नहीं है तो आप कुछ बाकी सब कुछ तो नो मैटर व्हाट यू डू इज़ यूजलेस. तो पहले हमने एक कार्ड रिकमेंडेशन इंजन बनाया वे यू कैन एक्चुअली गो पुट ऑल योर एक्सपेंसेस एंड वी ट्राई टू टेल यू विच इज़ द राइट कार्ड फॉर यू बेसिस वे यू स्पेंड मनी एंड आपको क्या बेनिफिट्स प्रीफर्ड है. सो डू यू हैव द राइट कार्ड फॉर योर सेल्फ. Once you have the right card, how should you, the number of cards, how should you spend on that card to get the maximum number of benefits and reward points. काफ़ी लोग होते हैं कि भाई they keep using, so for example we had a user Ultra HNI and when I was talking to the person वो दिल्ली के है तो उनके पास में इंडिया का सबसे महंगे टॉप के तीनों कार्ड थे. एंड तो मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि यार मैं तो सब कुछ सही करता हूँ, ये है वो है. बोला ठीक है, तो मतलब ये कार्ड आपने बोला कि मैंने अभी ये देख मैंने तनिष्क पे पिछले महीने 55 लाख का पेमेंट किया था इस कार्ड पे एंड आई गॉट द पॉइंट्स एंड एवरीथिंग. तो मतलब कि नहीं मिले आपको पॉइंट्स. तो उन्होंने बोला नहीं मुझे मिले, मैंने अपने रिलेशनशिप मैनेजर से चेक किया था, आई एम एन अल्ट्रा HNI तो मुझे मिले. मतलब कि नहीं मिले. तो मैंने आई शोड हिम the bank website which clearly said that you don't get points over here on this particular category jewelry पे. अच्छा. And then the person was furious. जो भी कुछ हुआ. Now the point I'm trying to make over here is that कि you may have the top cards, you may have whichever cards you have, but if you do not use them well, then they are useless for you. So in this case, although the person had the top card in India, on spending 55 lakh rupees, he got nothing. अगर यही फ्री वाला कार्ड यूज़ करते थे ना ऐसे से अमेजोन पे कार्ड, जो कि लाइफ टाइम फ्री, जो कि शायद हर घर में एक कार्ड है आज के दिन में, हाँ. तो भी उनको 1% यानी 55,000 के अमेजोन पे का बैलेंस मिल जाता. सो do you have the right cards to begin with, basis where you spend and how you spend, what benefits you want. Secondly, are you using the card in the right manner? So in this case clearly he was not using the card in the right manner. तो हम ये नहीं कहते कि आप 10 कार्ड लो, बट डू यू हैव द राइट 2-3 कार्ड्स एंड आर यू यूजिंग देम इन द राइट मैनर, बिकॉज ऑल द क्रेडिट कार्ड्स हैव देयर ओन TNC. कौन सी कैटेगरी पे पॉइंट्स देते, किस पे नहीं देते, कहाँ पे एडिशनल चार्ज होता है. सो सेकेंड, यूजिंग एवरीथिंग इन द राइट मैनर. एंड ऑफ कोर्स वी हैव Savvy, which is our AI assistant. You can also speak with a human. There are people who are planning their wedding by talking to a SafeSage expert and saving lakhs of rupees. There are people who are planning their education. There are people who are planning their overall financial well-being on the expense side. Wow. People planning their travel, right? So are you spending, these are big expenses, and then you of course have small expenses where we can help you. Am I using the right card for the right expense so that I'm getting maximum points? काफ़ी बहुत है कि you can also the arbitrage opportunities. For example, हम वैभव की बात करते, can you buy a gift card
which he did, right? He bought a gift card from the CFC platform where he got 15-20% discount, which was a net saving for him other than True, other correct, benefits. हाँ. तो वो arbitrage है, which probably the person was not aware of earlier. So am I using the cards in the right manner? Am I availing all the offers or arbitrage opportunities? तीसरा होता है redeeming your credit card points, like I told you earlier कि someone who's redeeming, I know people who are redeeming their points for cashback and then उसके बाद में immediately उसी पैसे को यूज़ करके वो फ्लाइट टिकट्स बुक करते, basically using the card for flight Correct, tickets, where in reality they could have redeemed their points for flight tickets and got 3x or 4x the value. So these are very smart redemption of your credit card points, right? काफ़ी लोग हैं जो कि रिडीम करते हैं डूइंग नॉट सो गुड टाइम. सो एक होता है रिडीमिंग फॉर द राइट ऑप्शन, ऑल्सो रिडीमिंग एट द राइट टाइम. मोस्ट ऑफ द क्रेडिट कार्ड्स हैव एन एनुअल ट्रांसफर offer where you get additional benefits or bonus when you redeem it during that window. तो अगर आप उस समय रिडीम करते हो तो आपको और भी वैल्यू मिल जाती है, लोगों को पता ही नहीं होता. उसके बाद में इवन व्हेन यू रिडीम योर पॉइंट्स फ्रॉम अ ट्रैवल लॉयल्टी प्रोग्राम से एयर इंडिया और मैरियट और एनीथिंग एल्स, वहाँ पे भी यू मे गेट अ डिफरेंट वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू आर रिडीमिंग व्हेन यू आर रिडीमिंग. तो व्हेन यू ऑप्टिमाइज फॉर एवरीथिंग, लाइक आई सेड, जो मैंने अपने शार्क टैंक के पीछे में भी कहा था, आई गॉट 23% वैल्यू, which I On think your a lot of spend. people are sitting on I think 25-30 bips, 40-50 paise. So Correct. If you do it well, if you do everything well, and this is what we enable people to do at So CFC. आपके यूजर सिर्फ क्रेडिट कार्ड होल्डर्स नहीं हो सकते. Somebody who's planning also to get a credit card, right? If I'm planning to get a new card, तो better है कि मैं पहले consult करूँ. Definitely. In fact, we have a lot of people who come on board, a lot of users. For example, the other day I was talking to I think 23-year-old boy from Kota. तो पढ़ाई कर ली, जॉब लग गई है, अभी सैलरी आ रही है, नाउ ही वांट्स टू गेट अ कार्ड. ही इज़ नॉट रियली श्योर कौन सा कार्ड लो, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है. तो ही बिकेम अ पेड सब्सक्राइबर, ही टुक अ मंथली प्लान कि भाई मैं जाके देखता हूँ कि व्हाट इज़ द डेटा ड्रिवन वे फॉर मी टू नो द राइट कार्ड फॉर मी. तो ये भी एक यूज केस है. हाँ, मतलब मुझे लगता है कि आपने कहा हम पहले बताते हैं कि विच कार्ड इज गुड फॉर यू, यस whether the card you're using is benefiting you or not. यस. So before getting a credit card also I can be a user Yes. to know it very well. And the sooner you begin your saving journey, the better it is for anyone. I mean, जैसे बोलते हैं ना, म्यूचुअल फंड की SIP जितनी जल्दी शुरू कर सो तो उतना अच्छा होता Correct, है. हाँ. उसी तरीके से जितना जल्दी आप यू मेक योर एक्सपेंसेस पे फॉर योर ट्रैवल उतना अच्छा होता है. So rather than saying credit card is a spending thing, you're saying it's a saving thing. It can add a lot of value. Yes. So आपके apps में paywall है. You know, the other day before the podcast I thought कि थोड़ा study किया जाए. I downloaded the app. Instantly it asks for money. Before I enter or know anything, I have to pay. और इसमें बहुत ज़्यादा issues भी हुए थे, ratings भी आई थी आपके. So what is your say on that? There's nothing called free lunch to begin with, right? Someone has to pay for the lunch. आप बाकी प्लेटफॉर्म की बात करते हो तो इफ़ यू आर नॉट पेइंग फॉर इट, प्रॉब्ली an advertiser is paying for it to push out irrelevant unwanted products to you, which is what other people are doing. हमने ये कहा कि भाई to begin with कि मुझे फ्री में नहीं देना है, बिकॉज देखिए आप हमेशा उसी को सर्व करते हो जो आपको पैसे देता है. अगर यूज़र मुझे पैसे नहीं दे रहा है तो मैं आपके डेटा से पैसे लूँगा. तो हमने बोला कि एक तो हम यूज़र से पैसे लेंगे. Once that was decided, so that we are able to give you unbiased recommendation कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. Now the second point was कि यूज़र से पैसे कब लेने चाहिए. We've done a lot of experiments in the past. हमने फ्री भी रखा था प्लेटफॉर्म, हमने काफ़ी कुछ ट्राई किया, and eventually what we figured out कि it's a premium platform, right? It's not something which is meant for anyone and everyone. Okay. And हमने अपने चार्जेस काफ़ी रिड्यूस कर दिए. तो हमने बोला कि a person should be willing to pay me at least 99 rupees if they want premium services. Correct. And that's the entire crux of it. हमने बोला कि हम फ्री में नहीं देंगे. आप कभी किसी रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाते, आप ये बोलते हो पहले मुझे चखा दो, अच्छा लगेगा तब हम पूरा देंगे. आप डिश ऑर्डर करते हो, अच्छी नहीं आई तो ठीक है, आप पार्किंग में जाते हो, एंड दैट अप्लाइज टू अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट. आप किसी को सर्विसिंग के लिए बुलाते तो यही बोलते हैं ना कि हाउस विजिटिंग चार्ज है $250 या 300 रुपीज़, वेदर यू डू एनीथिंग और नॉट. सो आई डोंट नो वाई, जस्ट बिकॉज इट्स अ मोबाइल एप्लीकेशन, वाई शुड पीपल हैव दैट कंसर्न. हमने काफ़ी सस्ता कर दिया. प्लान्स बिगिन है 99 रुपीज़. उसमें भी अगर आप कोई ऑफर कुछ अवेल करते हो तो इट कैन बी वेरी लेस, मच लेसर देन दैट. सो
a person who wants to get more value from their cards and loyalty, if the person is not willing to pay you a token amount on day one, so then we are not really sure कि future maybe if the person will be willing to pay money or not. इससे इफेक्ट पड़ा यूजर बेस पे? Of course, there are lots of people who say कि मुझे psychologically मुझे समझ में नहीं आया कि why should I pay you guys money on day zero, but that's the model of the business. We can't do anything, right? What we have done, we've tried to make it simpler for people to know what's inside the application once they enter. So we've put actual videos on the paywall, जहाँ पे you can see what to expect once you're inside the application. We will of course do a lot more. There are lots of things which are WIP, which will really make it more and more easier for a person to know what to expect once they are inside the platform. So we are making it easy, but we are not planning to take away the paywall altogether. That's a model which we've decided to follow, and we will continue. हमने इसको काफ़ी affordable कर दिया है. 99 rupees obviously. हाँ, and उसमें भी you can get a lot of discounts. For example, there is a partnership with Flipkart where you can get 30% off. So then it becomes quite affordable for a person. And तो हम नहीं चाहते कि हम यूज़र के डेटा को मोनेटाइज करें लाइक अदर पीपल. सो हमने बोला कि यूज़र शुड पे एंड दे शुड पे ऑन डे वन. एक और बात ये भी आती है कि द एक्सपेंसेस विच आई इंकर एज अ प्लेटफॉर्म, आई इंकर 70-80% ऑफ ऑल माई एक्सपेंसेस ऑन अ यूज़र ऑन डे वन. मैं क्यों इंकर करता हूँ? आप आते हो, आप अपना अकाउंट बनाते हो, अपना ईमेल लिंक करते हो. सो AI हैज़ टू गो थ्रू एवरीथिंग. आप शायद to build up your profile कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते. So we incur a lot of expenses over there and there itself. Obviously. So if I don't charge you on day one, and if I incur the 70% expense over there, then my P&L goes for a toss. Correct. And that's why we charge you on day one. Of course, we are not a big company. Tomorrow, if we become very big and if we have $100 million in our bank account, we may make it free. We may give you some trial period. But today, we are not in a position where we can actually spend that 70%, 80% money on you without charging you anything. So it's a very open platform. Ki So bhai what's agar- happening? You are talking about free rewards, free flights, free hotels. और लोगों का माइंडसेट है कि जब आप फ्री होटल्स और फ्री फ्लाइट्स की बात कर रहे हो तो why not you giving the service for free? Someone has to make money in some way, right? There is nothing free, even when it comes to free flights and hotels. हमने already बात की, someone else is paying for it. And moreover, you are also spending to get those Yes. reward points. Yes. See, सबका अपना अपना P&L होता है. When you talk about a bank, they make money from interchange. They make money from people who pay interest. They make money in a lot many ways. And that's why they're able to give you rewards. Correct. हमने बोला कि हम तो बहुत ही unbiased है. Other platforms make money by pushing you unwanted credit cards, unwanted loans, by trying to make you spin a wheel and make you shop on the platform. We don't do anything of that sort. So we have to make money in some way, and that's what we're trying to do. And it's very nominal charge. You know, fintech में सबसे बड़ा इशू है ट्रस्ट बिल्ड करना among the users. स्पेशली जब यूजर्स का फिनेंशियल डेटा आपके पास आ रहा हो. सो सेफ सैच में कौन से स्पेसिफिक मैकेनिज्म या फिलॉसफी आप फॉलो कर रहे हैं जिससे कि यूज़र जेन्युइनली सेफ फील कर रहा है आपके साथ? देखिए, to begin with, we don't collect any sensitive financial data. So for example, we don't take your entire card number. आपने मुझे खाली लास्ट के 4 digits दिए, which is nothing. जो कि आपके SMS में भी आता है, सब कुछ आता है. So we have not taken any confidential classified information from you. The only information we take from you is we ask you to link your email so we can auto-populate your credit card reward points and everything. Even that permission is optional. So as a user, you can decide कि मुझे link नहीं करना है. And you can manually enter the value. It hardly takes a few seconds. But more than 90% of our users choose to link their email. So one, we don't collect any sensitive information. Any information we collect is also optional for the user. Okay. Secondly, as a company, we follow bank grade security from day one. So we have, for example, ISO 27001 certification. We are PCI DSS compliant. So ये सब कुछ हमारे पास, this is all optional. We had a choice, right? But we chose to get all the certifications from day zero because we put any user information that we may, any user data that we may have at the top of all our priority. So we make sure that we follow bank grade security. No one has access to any information, and so users should feel safe. We are also backed by market investors, so we are trying to do anything and everything possible to make sure that a user feels safe in sharing any information with us. बिकॉज जनरली आजकल पूरा बिजनेस ही डेटा कलेक्शन पे चल रहा है, डेटा सेलिंग पे चल रहा है.
हम वो नहीं करना चाहते थे, इसके लिए हमने कहा कि हम आपसे पैसे लेंगे जहाँ पे मनी फ्रॉम द Yes. बैंक और द क्रेडिट कार्ड कंपनीज. हाँ देखिए, मोस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म्स आउट देयर दे मेक मनी बाय मोनेटाइजिंग योर डेटा. हमने बोला वी विल नॉट मोनेटाइज योर डेटा एंड दैट्स व्हाई वी चार्ज यू अ सम अमाउंट ऑफ So मनी. this will keep continuing. Yes, there are Any no day plans in आप the कभी future. भी मोनेटाइज नहीं करोगे? See, we will not give you irrelevant products for sure. If you feel कि आपके लिए कोई कार्ड सही है तो हम आपको वो कार्ड बताएंगे and we will of course if we can get some money out of it, why not? But that is not the way we. So let me give you an example. Other platforms will try to give you a card because they are getting paid on that card. Right? In our case, we don't do that. We will tell you which is the right card for you, irrespective whether I can make money or not. So if we say in Infinity, HDFC Infinity is the right card for you, we'll tell you कि आप HDFC Infinity ले लीजिए, ये आपके लिए सही कार्ड है, and जो कि आप बैंक के थ्रू डायरेक्टली अप्लाई कीजिए. आई हैव नथिंग टू विन और लूज ओवर देयर. मुझे तो आप ऑलरेडी पैसे दे चुके हो. Correct. But if I, for example, give you an XYZ card, which I know is the right card for you, and you can also apply for the card through me, where I can probably make some money. So why will I leave that money on the table, right? Correct. तो उस तरीके से हम पैसे बनाएंगे, but that is not where we begin. We begin at what is the best card for you. Unlike other platforms which begin कि भाई किस पे हमें पैसे मिलेंगे और वो आपको वही कार्ड बेचने की कोशिश करते हैं. So they do this with all other products as well. हम ये बोले कि because you've already paid me money, I will give you what is best for you. ओके फाइन. चलो कमिंग नाउ टू शार्क टैंक, क्योंकि नो डाउट शार्क टैंक ने आपको बहुत माइलेज दिलाई है. शार्क टैंक पे आप गए और अनुपम का सबसे पहला वर्ड आता है नया टोटका. उन्होंने आपको ये कहा Yes. क्योंकि रिवॉर्ड्स को मोनेटाइज करना, रिवॉर्ड पॉइंट से बात करना थोड़ा सा गिमिकी साउंड करता है Yes. मोस्टली लोगों को कि रिवॉर्ड से इतना कुछ नहीं, नॉट पॉसिबल. सो आपने कैसे अपने प्रोडक्ट को रीपोजिशन किया कि नहीं ये कोई हैक नहीं है, इट्स अ सीरियस प्रोडक्ट एंड अ सीरियस बिजनेस? रिपोजिशन करने की जरूरत ही नहीं थी. उन्होंने जब डेमो देखा, he was sold. हाँ, he was sold. You've seen हाँ, the episode, pitch. yeah. So when he saw the demo, when he heard the numbers, when he I mean he was sold. तो वो तो ठीक है, उन्हें भी TRP के लिए कुछ तो करना ही पड़ता. और इसका नाम बहुत अच्छा था. तो शार्क टैंक के बाद आपको ना बहुत सारे ऑफर्स आए होंगे, वैल्यूएशन के लिए लेकर बहुत कुछ चला होगा. तो लॉन्ग टर्म अलाइनमेंट कैसे करना डिसीजन में कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है? See, we'll always do what is best for the business. So we have a clear goal in mind. That is what we are working towards, and we will continue to build towards that. So anything and everything that enables us to get there, we will do that. And we are very clear we have to be at 10 million users by the end of this year. ग्रेट. And that is what we are working towards. आपने शार्क टैंक का ऑफर छोड़ दिया. Yes. व्हाट इज योर से, व्हाई? See, so the shoot happened on 8th of November. The episode came on 7th of Jan. Of course, the product, the business, and everything had evolved significantly when we sat down a few months later to really close the transaction. The business, the product was in a very different shape altogether. So we mutually decided कि भाई इस वैल्यूएशन पे इस समय तो it was not working out So for us. don't you think you are an opportunist? I'm actually not, because there was an opportunity, there was a proper conversation, so both the sides we respect each other. Any commitment has a value, there's a time value to it as well, right? So what I tell you today may not really hold after 6 months, unless I tell you it will hold forever. So this was a decision because transactions में delay हुआ. Delay in the sense the sharks were busy with the shoot as well and Right. everything, and in all fairness they've been approachable, they've been supporting us. But when we sat down to do the transaction or close the deal, the contours which we had agreed upon were not really working out anymore. करेक्ट. जैसे हमने पिछले एपिसोड्स में भी देखा है, वी हैव सीन मेनी फाउंडर्स टॉकिंग कि शार्क टैंक के बाद ना एक सडन ट्रैफिक आता है, सडन यूज़र बेस बढ़ता है क्योंकि एक माइलेज मिलती है. बहुत सारी कंपनीज D2C मोस्टली कोलैप्स कर जाती हैं बिकॉज वो रेडी नहीं होती इतना सारा हैंडल करने के लिए. सो आपने पहले से प्लान कर लिया था कि अगर ये माइलेज मिलती है तो हाउ वी विल हैंडल दिस?
See, we did plan a lot, but of course, no matter how much you plan, the search can take you by surprise. In our case, the same thing happened as well. हमारे केस में एक peculiar ये बात ये थी कि anyone can download your application anytime and they can begin Start to the use journey, it. right, हाँ. Unlike a physical product where you have to make sure कि आप शायद क्विक कॉमर्स पे लिस्टेड हो, आप ई कॉमर्स पे लिस्टेड हो. हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं था. So yeah, we did see a lot of spike, and although we thought we were prepared, but we were not. For example, the day our Shark Tank episode came, the PG was down because we did inform the PG in advance, but कहीं ना कहीं पे because of some lack of coordination, they were not able to activate higher. They were not able to activate more number of transactions going through the frequency or the number of transactions which can go through in a particular minute or particular hour or for Correct, our हाँ, PG. तो उसके कारण we lost a lot of transactions because a lot of people were trying to pay and then they were not able to make the payment, and उसके कारण it took us good 1 hour to fix it. Because रात का समय था, someone had to sit down and make changes in the background at the PG level, and they were also dependent on another vendor. Correct. So in the middle of all of this, we lost good amount of revenue because लोग उसी समय आते माने people payment नहीं हुआ तो people don't come back, right? Correct, हाँ. But ठीक है, I think that's how things are. तो ऐसे होना ही था थोड़ा बहुत तो. ओके. इंडिया में अभी भी क्रेडिट कार्ड के अडॉप्शन को लेके थोड़ा सा लोग हिचकते हैं, लेकिन डिजिटल बिहेवियर रैपिडली इवॉल्व हो रहा है, चेंज हो रहे हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ द अवेयरनेस एंड द नॉलेज इन द सिस्टम. तो आप सेफ सेज को एक प्रोडक्ट की तरह देखते हैं कि आप एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बिहेवियरल शिफ्ट लाएगा लोगों के अंदर? Yes, yes. That is what we want to do, and we already see that happen. हम चाहते हैं कि हर बंदे को, हर यूज़र को उनके खर्चों में ऑप्टिमल वैल्यू मिले. दैट इज़ व्हाट वी आर बिल्डिंग टुवर्ड्स. सो आगे फ्यूचर में सेम प्रोडक्ट, सेम कंपनीज भी लॉन्च हो जाएंगे. अभी आप ऑल अलोन इन द मार्केट हो, क्योंकि अगर हम बात करें आपके कॉम्पिटिटर्स, अगर मेरे जहन में कोई नाम आता है तो एक क्रेडिट का आता है. अगेन उनका प्रोडक्ट बहुत डिफरेंट है. दे आर नॉट सेम, दे आर जस्ट अ पेमेंट गेटवे, आई वुड से, राइट? नथिंग मोर देन दैट फॉर क्रेडिट कार्ड्स. तो आप अभी अकेले हो, सो यू आर गेटिंग ऑल द पाई. जब और आ जाएंगे तो हाउ विल यू मेक योर सेल्फ? See, so I wouldn't say we are all alone. I think we begin working. So there are hundreds of companies trying to solve the same problem in different shape and form. Okay. Probably we are the most known right now. Even other bigger platforms, they've tried solving this problem in the past. Because of multiple reasons, they were not able to get ahead. We were able to get ahead, and now people know us a lot more because of Shark Tank. बिकॉज यू आर नॉट लॉस्ट कि हमको सब कुछ करना है, हमें एक ही चीज़ करनी है. और दूसरी बात है, आई एम वेरी हैप्पी इफ देयर आर मोर कंपनीज ट्राइंग टू डू दिस, बिकॉज अवेयरनेस बढ़ेगी तो लोग ज़्यादा करेंगे. बिकॉज वी आर टू स्मॉल, वी आर इट्स अ न्यू कैटेगरी दैट वी आर ट्राइंग टू क्रिएट. सो ऑफ कोर्स वी as many people as possible, because I'm more than safety, I'm married to the idea of people getting more value from their spends in credit cards. सो दैट्स व्हाट माय क्वेश्चन इज कि आप अपने को अलग कैसे रखेंगे फिर भी? See, हम काफ़ी इनोवेशन कर रहे हैं. A lot of it you will see in the months to come. There are lots of things happening on the product side. There are lots of things happening on the user experience side. So you will see things come out slowly as we get ahead. सो कंटेंट क्रिएशन हेल्प्स यू विद दिस, क्योंकि सोशल मीडिया पे जैसे हमने बात करी, हैक्स देने वाले बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं. See, हैक्स वाले हैक ही देते हैं, हम हैक्स में डील नहीं करते. यूज़र हैज़ टू टेक अ कॉल कि उनको हैक चाहिए कि क्या चाहिए. See, it's the same thing as what you see in what you see, for example, in equity markets. अगर आप ऑनलाइन सर्च करोगे, किसी से बात करो, तो पेनी स्टॉक्स बताने वाले बहुत लोग मिलेंगे. बिल्कुल. But a knowledgeable person will not run after penny stocks. Of course, some penny stocks can make you a lot of money, but at the same time, they can also lose you money and time and effort. At right? one go, correct. Smart people, they just focus on the blue chip and the right way of doing things. It's the same thing over here as well. So people who want to put hacks on social media, they can keep putting hacks on social media. Like I said, at the end of the day, they are only hacks. We focus on adding value to the user, which we will continue to do. And हमारे पास प्रोडक्ट है, वो खाली कंटेंट है. कंटेंट फंडामेंटली रिलाइज ऑन यू नोइंग व्हाट यू वांट,
The user is spending a lot of time and effort in going through the content, taking a lot of cognitive load कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, and then doing this again and again. With the product, you don't have to do anything. Simply download an application and let us tell you what to do or not to Correct. do. तो वो हम बना दें तो of course we will continue बिकॉज building. शायद वो हैक्स सिर्फ बता रहे हैं और आप इम्प्लीमेंट करने में हेल्प कर हम रहे हैं हैक पे करते ही नहीं है नहीं, मतलब दे आर गिविंग genuine hack गिविंग होते द हैं, हाँ. इंफॉर्मेशन बट यू आर हेल्पिंग देम टू जस्ट एक्चुअली इम्प्लीमेंट इट. यस जेन्यून हैक होते तो हम बताते फॉर एग्जांपल आप हाँ. यहाँ पे डायरेक्टली पे कर दो व्हाई डोंट यू बाय अ वाउचर व्हिच कैन गेट यू 10% मोर एंड वी कैन आल्सो गिव यू वाउचर तो दिस विल सेव यू मनी 10%. राइट. तो उस तरीके से हम बताते हैं. सो अगर आपको एक्सप्लेन करना हो हु आशीष लट इज, फाउंडर, शार्क टैंक एंटरप्रेन्योर या एक फिनटेक वॉइस? A bit of all three actually. A bit of all three. I am a founder first. That's why I featured on Shark Tank. We are building in the fintech space, fintech/reward tech. So we definitely that's what we do. सो आगे चल के आप क्रेडिट कार्ड से डेबिट कार्ड्स की तरफ भी बढ़ेंगे? Never say never. While we don't have any plans right now, but never say never. So हम कल कुछ भी कर सकते हैं. हमें पता नहीं है. UPI हो सकता है, डेबिट कार्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. क्योंकि डेबिट कार्ड्स पे भी रिवॉर्ड्स आते हैं. Yes. काफी Not so कम है. rewarding. Not so rewarding. Not much, but थोड़े बहुत. Yes. तो मे बी यू कैन स्विच समडे. Never know. दैट कैन बी ऑल्सो अ प्रोडक्ट फॉर यू. Yes. You never know. चलिए, थैंक यू आशीष बात करने के लिए. लेकिन अभी हम आपकी टीम से भी बात करना चाहेंगे टू नो हु रियल आशीष इज. Sure. राइट. सो लेट्स गो एंड मीट योर टीम. सो हम एक छोटा सा रैपिड फायर करेंगे जस्ट टू नो आशीष मोर बेटर, और ये छोटा सा रैपिड फायर आप सबके साथ भी होगा टू नो द टीम बेटर. सो सबसे पहले आशीष, वन मनी हैबिट जो हर इंडियन को इमीडिएटली चेंज कर देनी चाहिए. Don't pay using cash. Pay using credit cards. ओके. वर्स्ट फाइनेंशियल एडवाइस यू हैव एवर हर्ड? Don't use credit cards. Okay, so who agrees with Ashish on this? Everyone? Okay, so सबके पास क्रेडिट कार्ड्स हैं? मुझे नहीं पता. Okay, so टीम से सबसे पूछना चाहूंगी, आशीष एज अ बॉस, one word. Everyone, please answer. आशीष एक तो पुश करते हैं कि जो So he's a pushy boss. मतलब इन अ बेटर वे कि हम कहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं और ऑलवेज ग्रोथ सीख करनी चाहिए. बाकी तो तब भी नहीं. Bosses are never happy. हाँ ये तो ट्रू है. So anyone else? Ashish in one word. मे बी टाइट एनवायरनमेंट में ग्रो होना. सब अच्छी अच्छी बातें बता रहे हो. हाँ. नहीं एक्चुअली में ये तो स्टार्टअप में होता ही है. Okay, anyone else? A team player. Okay, good. Okay, एक बुराई भी तो बताओ. महिमा, you? Nothing as such like Mike, please, Mike. One word for Ashish. like he's like a guide to us, like in every meeting there's like कुछ कमियां बताते हैं बट उसका सॉल्यूशन भी वो साथ में देते हैं कि you can do this. आशीष ने तो सिखा दिया था अच्छे अच्छे बातें बोलना. अरे नहीं. सब स्मार्ट है. ओके, सबसे क्रेजी आइडिया जो आशीष ने पिच किया हो टीम को, सबसे क्रेजी. आशीष ने बोला ये करते हैं. ऑफ साइड चलते हैं. आए दैट वाज अ गुड आइडिया. Paywall conversion. आशीष आपकी टीम भी बात कर रही है पेवॉल पे. पता ना सैलरी कहाँ से पेवॉल से जाती है. ओके, सो यही था. आशीष, क्रेडिट कार्ड ब्लेसिंग या ट्रैप? ब्लेसिंग. ब्लेसिंग. ब्लेसिंग एनी गिवन डे. एनी गिवन डे इज अ ब्लेसिंग फॉर एवरीवन. नहीं, डिपेंड्स. डिपेंड्स. ओके, सेविंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है या इन्वेस्टिंग? बोथ आर सेम. बोथ आर सेम. ओके, फॉर मी बोथ आर सेम.
For you both are same. Okay. Team. ऑफिस में कौन ज्यादा स्ट्रिक्ट है, आशीष या डेडलाइंस? Deadlines created by Ashish. Anyone else want to add on to this? सब शांत है. हाँ. Okay. सेफ से ज्वाइन करने का बेस्ट डिसीजन क्यों है फॉर यू? हाँ, प्लीज ही वांट्स टू आंसर दिस. बहुत ही फास्ट मूविंग स्टार्टअप है, रोज नई चीज़ें सीखते हैं, रोज कुछ चीज़ें जो पुरानी चीज़ें उनको अनलर्न भी करते हैं. तो एज अ इंडिविजुअल ये एचआर इंटरव्यू नहीं हो रहा है. तो लाइक चीज़ें बहुत जल्दी सीख रहे हैं, ये है मतलब. सो ये तुम्हारे लिए अच्छा रीजन था हाँ, टू अच्छा ज्वाइन. decision है. चलो और हम एग्जिट के टाइम पे बात करेंगे. सो फॉर यू? सीखने वाला पार्ट अगर हटा दे तो क्रिकेट खेलने को मिलता है, ऑफ साइड जाने को मिलता है, ओहो. सो इट इज़ द बेस्ट डिसीजन. ओके. एनीवन एल्स वांट टू शेयर कि क्यों रीजन था? बढ़िया नहीं था? लाइक मतलब हाँ. फॉर मी मतलब सीखने को काफ़ी है, मतलब काफ़ी अलग अलग डोमेन में भी हम इनपुट दे सकते हैं. ऐसा नहीं है कि जिस रोल के लिए हायर हुए हैं उसी में ही हमें इनपुट देना है. तो ओपन काफ़ी वो कल्चर है कि आप इनपुट दे सकते ओके. एक हैबिट जो आपने आशीष से सीखी हो? मैंने मैं पंक्चुअल हो गया पहले से. आर यू? पैसे बचाना. Okay, that's a nice thing. Obviously, everyone is learning from Ashish for this. और किसी ने कुछ अच्छा सीखा होगा, किसी ने सीखा ही नहीं कुछ अच्छा? क्रेडिट, मैं यहाँ पे आने से पहले कार्ड्स यूज़ नहीं करता था, बट यहाँ पे आने के बाद मैंने खुद भी ले लिया और खुद भी मतलब पैसे तो बचा ही रहा हूँ कार्ड यूज़ करके. ओके. आशीष, फॉर यू, एक चीज जो लोग पैसे के मैटर में ओवर एस्टिमेट करते हैं. रिटर्न्स ऑन द इन्वेस्टमेंट. ये ओवर एस्टिमेट करते हैं लोग और उतना नहीं मिलता ROI. नहीं. ओके. एक चीज लोग जो अंडर एस्टिमेट करते हैं फाइनेंशियली. रिवॉर्ड्स इन द क्रेडिट कार्ड्स. यू आर ऑलवेज प्रमोटिंग सेफ सेज. हाँ. आई एम प्रमोटिंग कार्ड्स. Okay. Rich mindset versus middle mindset. Biggest difference. Rich mindset looks at the bigger picture. Okay. Mid mindset probably doesn't look at that bigger picture. वो They always think death is a trap. छोटा सोचते हैं. हाँ. और एक रिच आदमी डेप्थ लेने में डरता नहीं है. हाँ, बड़ा सोचता है. बड़ा सोचता है. How to multiply that debt also. Correct. वो मल्टीपल्स में सोचता है, छोटा आदमी परसेंटेज में सोचता है. Right, 100%. So, क्या आशीष ज़्यादा विजनरी है या एग्जीक्यूशन फोकस्ड? एग्जीक्यूशन फोकस टोटली. अगर लाइक एक मीटिंग में कोई चीज़ डिस्कस हुई है, देन नेक्स्ट वीक में टीम उस पर वर्क करती हुई दिख रही होगी, आपको वो मैच होता हुआ दिख रहा होगा. ओके. ग्रेट. एनीवन एल्स इस पे? विजनरी भी है क्योंकि एज ए कंपनी से हम ट्राई कर रहे हैं कि इंडिया में जितने भी क्रेडिट कार्ड्स है इसका प्रमोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को यूज़ करें और अपने जो एक्सपेंसेस है उन पे ज़्यादा से ज़्यादा. भाई तुम्हारा नाम क्या है? देव. क्या नाम है? देव. देव. इसको ब्रांड एम्बेसडर बना दीजिए. बहुत अच्छे से प्रमोट कर रहा है. जब हम करिए अच्छा रहे हैं. ओके. टीम में सबसे कॉमन फाइनेंशियल मिस्टेक जो आप लोग देखते हैं यूजर्स में? वही कि रिवॉर्ड पॉइंट्स यूज़र्स के पास पड़े रहते हैं, उनको यूज़ नहीं करते, और अगर करेंगे कैशबैक या कैटलॉग प्रोडक्ट्स पे यूज़ कर लेंगे तो उन पे रिटर्न्स ज़्यादा नहीं मिलते. होटल या एयरलाइन ट्रांसफ़र करना प्रोडक्ट नॉलेज बहुत अच्छे से है देखो. ओके. एनी किसी और मतलब वही है, होटल और एयरलाइंस पे अगर ज़्यादा यूज़ करे तो ज़्यादा. और क्या आपको लगता है यूज़र गलती कर रहा है? सर वाली बात ऐड ऑन करना चाहूँगा, कार्ड्स यूज़ नहीं करते. ओके. ओके. सो लेट नाइट हसल या स्मार्ट वर्क, सेफ सेज कल्चर क्या फॉलो करता है? मिक्स ऑफ बहुत. बाकी स्मार्ट वर्क की है. रात में भी काम करा रहे हो आशीष? रात में काम करा रहे हो? मतलब अगर यूजर के एंड से देखा जाए तो अगर रात में
मतलब जब शार्क टैंक आया था तो हमने करा था। लेट नाइट किया था ना, किया कराया था आशीष आपने। किसी और को कुछ ऐड करना है? लेट नाइट हसल या स्मार्ट वर्क? हाँ, टेक टीम बताया। बोथ, रात में काम करा रहे हैं आशीष? दोनों ही होता है। हाँ, मे बी ग्रो होना है तो दोनों करना पड़ता है। तो उस पर रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं? क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो मिल रहे हैं। आशीष एक रिवॉर्ड्स इंटरनल स्टार्ट करो आप। हाँ, जो लेट नाइट काम करेगा उसको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ओके, आशीष, ये सवाल आशीष से है। अगर 10,000 रुपये मिले आज, सेव करोगे, इन्वेस्ट करोगे या स्पेंड करोगे? इन्वेस्ट करूँगा। इन्वेस्ट करोगे, स्पेंड नहीं करोगे क्रेडिट कार्ड के थ्रू एंड देन यू मेक मनी आउट ऑफ इट एज यू ऑलवेज प्रमोट लाइक दैट? बट आई डोंट प्रमोट अनवांटेड एक्सपेंसेस, राइट? ओके, ठीक है। तो पैसे खर्च ही नहीं करने तो भी मतलब। ओके, एक फाइनेंशियल मिस्टेक जो आपने खुद की है और रिग्रेट होता है? I began saving very late. ओके, सेविंग्स इज इम्पोर्टेंट, Yes. करेक्ट। एक और, 40 तक फाइनेंशियली सॉर्टेड होने का सीक्रेट, वन लाइन। I don't know because I'm not financially sorted. I wish I knew. I'm not. एंड यू आर 40? No. ओके, सो देयर इज नो, अभी आपके पास नहीं पता आपको क्या सीक्रेट है, ठीक है। नाउ टीम, बैक टू यू। अगर आशीष फाउंडर ना होते तो क्या होते? आई वांट दिस आंसर फ्रॉम एवरीवन। हाँ महिमा, देव ने बहुत आंसर्स दिए आज। क्या दिमाग में आता? आशीष क्या होते अगर फाउंडर नहीं होते तो? हाँ हाँ, ग्रोथ मैनेजर। हाय, अच्छा, एज इन कंपनी। मतलब जॉब तो होती, लेकिन उसके साथ कंसल्टेंट पक्का होते हैं। क्रेडिट ओके, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, ओके। अकॉर्डिंग टू यू? आई गेस शार्क टैंक की पिच देखने के बाद तो मतलब मुझे लग रहा है कि सर अच्छे पिक्चर भी बन सकते हैं। ही डिलीवर्ड क्वाइट वेल, लाइक सबके लिए पिच डेक लिख रहे होते। हाँ? क्या होते अगर आशीष फाउंडर ना होते तो? सर मैम, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू क्यूए टेस्टर बहुत बढ़िया होते हैं क्योंकि इनके फोन में बग्स तो आते हैं बहुत तगड़े वाले। मतलब कुछ क्रिएटिव नहीं है इनके, मैम इनके नजरों से कोई बग बच नहीं पाता। देव, योर इनपुट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर होते हैं। नहीं, आशीष इंक्रीमेंट अच्छा मिला है। और अगर मतलब प्रोफेशनली, उसको डर है शूट के बाद ना मुझे लपेटा ना जाए। नहीं नहीं, अगर मतलब लाइक कॉर्पोरेट में ना होते तो मे बी स्पोर्ट पर्सन हो सकते थे। हाँ, मैंने वियर्ड थॉट्स पूछे थे, आप सबने मुझे ना बड़ा अच्छा से मतलब अगर जवाब दिया corporate में है। नहीं होते तो लाइक Sports person होते। स्पोर्ट पर्सन हो सकते। आशीष आप बताओ, आप नहीं फाउंडर, जॉब ये सब नहीं होते तो क्या होते? जॉब ऑल्सो नहीं, जॉब भी नहीं कर रहे होते, समथिंग क्रिएटिव, क्या होते? मे बी ट्रैवल एजेंसी चला रहा। मतलब बिजनेस ही कर रहे होते। ट्रैवल एजेंसी, बट हाँ, लेकिन इट्स नॉट लाइक ए स्टार्टअप ना। मतलब ठीक है, ट्रैवल बिजनेस ही है। एजेंसी, हाँ, नहीं वही बैठ के लोगों को पॉइंट्स पे ट्रैवल बुक करना। मतलब ये चीज रिवॉर्ड पे खेल ही रहे होते आप। ओके, वन लाइन में सेफ सेज का रियल इम्पैक्ट क्या है लोगों की लाइफ में? वन लाइन, क्या इम्पैक्ट डाला है? क्योंकि यू कम अक्रॉस यूजर्स, राइट? उनका यूजर बिहेवियर क्या चेंज हुआ है? देव, नो सेट आंसर। द वे यूजर स्पेंड्स, मतलब जो अपने एक्सपेंसेस करते हैं उनको कैसे अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। ओके, वन लाइनर। मतलब स्पेंडिंग के साथ सेविंग भी हो जाना। ओके, ये बदला है। आई वुड से कि डिसीजन बेटर हुआ है कौन सा कार्ड अप्लाई करना है, लेना है, इंस्टेड ऑफ लाइक किसी के से, मतलब किसी से एडवाइस ले लिया और सुन लिया। बेटर है कि सेफ से यूज़ करके कार्ड रिकमेंडेशन है हम पे तो। ओके,
एक क्वेश्चन ऑफ द बुक यहाँ नहीं था मेरे पास, अभी आया है। सब लोग अपने आप को कहाँ देखते हो इस कंपनी के अंदर? आज जिस पोजीशन पे हो उससे कहाँ जाना चाहते हो विद यू? डेफिनेटली इससे तो 10x ऊपर ही नहीं नहीं नहीं, टेल मी द डेजिग्नेशन नेम। आज किस डेजिग्नेशन पे हो आप? अभी तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। क्या बनना चाहते हो? अगर आप सेफ सेविज में हो तो कहाँ जाना चाहोगे? ऑब्वियसली सीईओ सीटीओ, इससे नीचे तो कुछ नहीं है। आप सब सीईओ नहीं बोलना। टेक में तो सबसे ऊपर सीटीओ ही होते हैं वैसे। ओके गुड। हाँ, सेम एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे ही देखता हूँ अपने आप को सेफ सेज में इन लॉन्ग टर्म। ओके, सीटीओ ऑफ कोर्स। सब टेक वाले बैठे हैं। हाँ यू महिमा? ग्रोथ मैनेजर। मैनेजर के ऊपर देखो मैनेजर है ना। अच्छा, फाउंडर्स कौन कौन बनना चाहता है? काफी लर्निंग रही स्टार्टअप में। कौन कौन अपनी अपनी कंपनी खोलना चाहता है? मैं तो चाहता हूँ, ओके मतलब बाद में। सब चाहते हो कि सब नौकरी है? काइंड ऑफ टेक में ही सही, बट कोई भी छोटी सी कहीं कुछ तो स्टार्ट करना है, मतलब अपना एक करना है। जैसे कोई छोटा कोई ऐप। सो वी हैव लॉट ऑफ फाउंडर्स इन द रूम। हाँ, तो सबकी पिच अच्छी लिख देंगे फिर आशीष। थैंक यू। शार्क टैंक की तो लिख ही दूंगा। शार्क टैंक के लिए लिख देंगे। बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके एंड होप टू सी यू सून अगेन सम डे, जब आपके पास बहुत बड़ी फंडिंग है और हम आपको कवर करने आए दोबारा। Hopefully soon. चलो, थैंक यू आशीष फॉर हैविंग अस इन द रूम। थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू। थैंक यू गाइस। थैंक यू गाइस।